Good morning, students. How are you all? I hope you all are fine and studying well. Okay. So, yesterday we were studying about the story An Uncomfortable Bed, which is written by Guy de Maupassant, and it is a story of the writer and his friends visiting Picardy during autumn season. Okay, they go for to spend a few days. Okay, like a vacation kind of a thing. Okay, so they all go to have fun there in Picardy. So the writer thinks that his friends are planning some kind of practical joke on him. Practical joke means a joke which makes someone look silly, and it is not a joke which is verbal. Okay, it is a joke which is has physical action in it. Okay, for example, we do pranks, right, on our friends. I gave you an example yesterday, like your friend is about to sit on a chair and you remove the chair from his back, so the friend falls down. That is a practical joke. Okay, so similarly the author's friends, they are planning a practical joke on him. ठीक है, तो ऑथर को ये सस्पेशन होता है, ये डाउट होता है कि हिज फ्रेंड्स मस्ट बी प्लानिंग समथिंग बिकॉज दे आर ऑल वेरी फॉन्ड ऑफ प्रैक्टिकल जोक्स. So they must be planning something, and the author is very careful, very watchful towards it. He is thinking in his mind that he is about to be the target of the joke, right? Author को लगता है कि उसी पे joke crack होने वाला है, तो he is very conscious, you can say, बहुत ही aware हैं वो कि हर चीज़ ध्यान से कर रहे, देख रहे कि कोई दिक्कत ना हो, उन पे उनका मजाक ना बन पाए. ठीक है, तो इतना हम लोग ने पढ़ा था. ठीक है, और उसके बाद क्या होता है कि जब ऑथर एंड उनके सारे फ्रेंड्स डिनर के लिए बैठते हैं, तो देयर इज टू मच मर्थ, एक्सेसिव मर्थ. मर्थ मीन्स जॉय. ओके, तो सब लोग बहुत ज्यादा खुश हैं, ओवर खुश हैं. तो ऑथर को डाउट होता है कि ये लोग इतने खुश क्यों हैं, इतनी खुशी की तो कोई बात है नहीं, तो इतने खुश क्यों हैं, जरूर ये लोग कोई जोक क्रैक कर रहे हैं और मैं इस जोक का विक्टिम बनने वाला हूँ, मुझ पे ये जोक क्रैक होने वाला है. सो what happens next? Let's see from paragraph 6. Open your books, paragraph 6, page number 1. Okay, the entire evening everyone laughed in an exaggerated fashion. Just as a dog can smell whatever it is hunting, I could almost smell a practical joke in the air. But what was it? I was watchful, restless. I did not miss a single word or a meaning or a gesture. Everyone seemed to be a suspect, and I even looked distrustfully at the faces of the other guests. तो क्या होता है कि जिस शाम वो लोग डिनर करते रहते हैं, उस एंटायर इवनिंग में सब लोग कुछ ज़्यादा ही खुश थे, कुछ ज़्यादा ही हंस रहे थे. एग्जैगरेटेड फैशन मतलब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा, जितना ज़रूरी है उससे ओवर. ठीक है, everybody was over happy, everybody seemed to be overly laughing, overly happy. राइटर को लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है यहाँ पे. ठीक है, तो जस्ट एज अ डॉग कैन स्मेल वॉट एवर इट इज हंटिंग. जैसे जब डॉग होते हैं, यू नो देयर आर डॉग्स, दे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्मेलिंग पावर, सो दे कैन स्मेल वॉट एवर दे आर हंटिंग. डॉग्स के सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है, तो जब भी वो लोग कोई चीज हंट करने जाते हैं, कोई चीज देखने जाते हैं, कोई चीज उनको प्रे बनाना होता है, अपने खाने के खोज में जाते हैं, तो दे कीप ऑन स्मेलिंग. And what happens that as soon as the prey or the food comes near, the dog can smell it. वैसे ही जो राइटर थे, वो जो उनके साथ हो रहा था, जो उनको लग रहा था कि वो विक्टिम बनने वाले हैं, ये सारी चीजें वो स्मेल कर पा रहे थे. उनको ऐसा फील हो जा रहा था, नॉट लिटरली स्मेल, ऐसा नहीं था कि वो लिटरली सूंघ पा रहे थे, बट ही कुड नो, he was having his intuitions that ऐसा कुछ होने वाला है उनके साथ. Just like a dog can do, can smell his prey. Okay, so but what was it? तो राइटर को ये तो पता नहीं था कि होने क्या वाला है. वो जान रहे थे कि कुछ होने वाला है, बट क्या होने वाला है ये तो नहीं पता था. I was watchful, restless. Watchful मतलब careful. राइटर जो है बहुत अवेयर बैठे थे. He was very aware. He was looking carefully at everything कि क्या होने वाला है. He was very restless. उनको आराम नहीं मिल रहा था जब तक उनको पता नहीं चल जाए, क्योंकि उनको पता है कि उन पे कोई प्रैक्टिकल जोक होने वाला है. ठीक है, तो he was not very comfortable. He was
गेटिंग रेस्टलेस ओवर द टाइम. ठीक है, तो राइटर कहते हैं आई डिड नॉट मिस अ सिंगल वर्ड और अ मीनिंग और अ जेस्चर. सो व्हाट हैपेंस, राइटर सेज दैट उन्होंने अपने फ्रेंड्स का वो कोई भी वर्ड, कोई भी जेस्चर मतलब एक्शन, ठीक है, कोई भी वर्ड, कोई भी एक्शन, कोई भी पन्स, जैसे वर्ड, एक वर्ड हम लोग बोलते हैं एंड मतलब हमारा कुछ और होता है, वैसे कोई भी वर्ड, ऐसे उस कोई भी चीज वो लोग बोल रहे थे, उसकी मीनिंग्स, उसका जेस्चर, he was not missing on anything. Okay, he was very careful, very watchful regarding all this. Everyone seemed to be a suspect, and I even looked distrustfully at the faces of other guests. तो राइटर के जो सारे दोस्त थे, राइटर फेल्ट दैट एवरीबडी वॉज अ सस्पेक्ट. मतलब उनको ऐसा लग रहा था कि यार ये कुछ गड़बड़ करेगा, ये कुछ मेरे पे जोक करेगा, या फिर नेक्स्ट हर किसी में उनको लग रहा था कि यार यही मेरे पे कोई जोक करेगा, ये मेरे पे कोई जोक करेगा, ये भी करेगा, ये भी करेगा. तो ही वॉज हैविंग दैट डिस्ट्रस्ट फीलिंग. उनको किसी पे भरोसा नहीं हो रहा था. ही वॉज लुकिंग डिस्ट्रस्टफुली इवन एट द फेसेस ऑफ द अदर गेस्ट. जो वहां पे वो और उनके फ्रेंड्स के अलावा जो और गेस्ट्स थे, उनके चेहरों को भी ऐसे ही डिस्ट्रस्टफुली देख रहे थे. मतलब ही वॉज नॉट एबल टू हैव ट्रस्ट ऑन एनीवन. ठीक है, द आवर स्ट्रक फॉर गोइंग टू बेड. अब धीरे धीरे शाम से रात होने लगी. सो इट वॉज द आवर फॉर गोइंग टू बेड. ठीक है, तो अब टाइम हो गया सोने का. द होल हाउस होल्ड केम टू अकम्पनी मी टू माई रूम. वाई? सो द राइटर जब सोने जाते हैं तो क्या होता है कि जितने उनके फ्रेंड्स रहते हैं, जितने हाउस होल्ड्स रहते हैं, सब जो हैं आते हैं उनको उनके रूम तक ड्रॉप करने, कि दे केम टू बिड हिम गुड बाय. ठीक है, तो राइटर वॉज वेरी वॉचफुल कि यार सारे लोग क्यों आ रहे हैं, मतलब कुछ लोग आए, ठीक है, एक आध लोग आए, समझ में आता है. उनके सारे फ्रेंड्स आए उनको गुड नाइट बिड करने, उनके रूम तक उनको ड्रॉप करने. तो राइटर को सस्पिशन हो रहा था दिमाग में कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, क्या होने वाला है उनके साथ. ठीक है, सो इट वॉज वेरी a suspicious kind of, a doubtful kind of situation for the writer. They called to me, good night. तो सबने उन्हें कहा good night. तो the writer was okay, good night. I entered my room, shut the door and remained standing. I'm reading paragraph 9. Okay. I entered my room, shut the door and remained standing without moving a single step, holding the candle in my hand. I heard people laughing and whispering in the corridor. Without doubt, they were spying on me. I cast a glance round the walls, the furniture, the ceiling, the hangings on the floor and the floor. I saw nothing to justify suspicion. I heard persons moving about outside my door. I had no doubt they were looking through the keyhole. तो अब क्या होता है, राइटर जो है वो अपने रूम में जाते हैं, अपने रूम का दरवाजा शट करते हैं, क्लोज करते हैं और वहां पे कुछ देर रुकते हैं, खड़े रहते हैं. विदाउट मूविंग अ सिंगल स्टेप. वो एक भी कदम आगे नहीं बढ़ाते, क्योंकि उनके मन में सस्पिशन है कि उनके साथ कुछ होने वाला है, उनके मन में डाउट है कि उनके साथ कुछ होने वाला है. ठीक है, तो वो जहाँ रूम में एंटर करते हैं, दरवाजा बंद करते हैं और एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाते हैं और कैंडल जो होती है वो अपने हाथ में ही पकड़े रहते हैं. I heard people laughing and whispering in the corridor. अब क्या होता है कि राइटर जैसे ही अपने रूम में आता है तो he can hear the sounds of laughing and whispering in the corridor. तो राइटर को जो है लोगों की laughing, हंसने की और whisper करने की आवाज आती है कॉरिडोर से. ठीक है, without doubt they were spying on me. तो कॉरिडोर मतलब वरांडा, जो रूम के बाहर वाला एरिया होता है, आप कह सकते हो, उसको हम लोग कॉरिडोर कह रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, so the writer could hear people laughing and whispering, फुसफुसाना, whispering is फुसफुसाना, okay, from the corridor, from outside his door. Okay, without doubt they were spying on me. So the writer knows it that उन पे practical joke बनने वाला है, तो जितने लोग हैं उनके आसपास सब लोग उन पे स्पाई कर रहे होंगे. और कुछ लोग की होल, जो डोर पे की लगाने वाला एरिया होता है, वहां पे जो की, अगर की को निकाल लिया जाए तो वहां पे एक छोटा सा होल होता है जिससे हम रूम के अंदर देख सकते हैं. तो द राइटर वाज श्योर दैट समबडी मस्ट बी लुकिंग थ्रू द की होल. ओके, आई कास्ट अ ग्लांस राउंड द वॉल्स, द फर्नीचर, द सीलिंग, द हैंगिंग्स एंड द फ्लोर. सो राइटर क्या करते हैं, वो उनके हाथ में कैंडल रहती है, वो वहीं पे खड़े खड़े दीवारों पे, सीलिंग्स पे, फिर जो हैंगिंग्स हैं,
फ्लोर जो वॉल पे जो भी चीजें हैंग कर रही हैं, जो भी फ्लोर है, सारी चीजों को बहुत ध्यान से देखते हैं, ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके साथ किस चीज से मजाक होने वाला है. ठीक है, ही इज ट्राइंग टू फिगर आउट दैट what will be the thing which will be used to cast a practical joke on him. I saw nothing to justify suspicion. अब राइटर को ऐसा लगता है कि वो सारी चीजें देख चुके हैं, तब उन्हें ऐसा फील होता है कि कुछ तो मिला ही नहीं सस्पेशन के लायक, कुछ तो मिला ही नहीं जिस पे हम डाउट कर सकें. कोई चीज ऐसी डाउटफुल सी लग ही नहीं रही है. ना फ्लोर पे कुछ है, ना हैंगिंग्स पे कुछ है, ना सीलिंग पे कुछ है, कहीं भी कुछ नहीं है. तो राइटर को कुछ मिलता ही नहीं है अपनी सस्पेशन, जो भी डाउट्स हैं उनकी, वो क्लियर करने के लिए. आई हर्ड पर्सन्स मूविंग अबाउट आउटसाइड माई डोर. तो राइटर क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि ही कुड हियर द पीपल दे वर मूविंग आउटसाइड द डोर. तो अब उन पे प्रैक्टिकल जोक क्रैक होने वाला है. ठीक है, तो जितने उनके फ्रेंड्स थे वो उनके रूम के आसपास ही कहीं ना कहीं घूम रहे थे, बाहर मूव कर रहे थे डोर के बाहर. सो जो राइटर है उनको ये फील होता है कि ही कुड हियर द फुटस्टेप्स ऑफ द पीपल मूविंग आउटसाइड हिज रूम. ओके, आई हैड नो डाउट दे वर लुकिंग थ्रू द की होल. और कुछ ऐसे भी थे जो की होल से झांक रहे थे. ठीक है, वील एंड टुडेज लेक्चर हियर एट पैराग्राफ नंबर 9. वील स्टार्ट फ्रॉम पैराग्राफ 10 tomorrow. Okay, till then you all study well. I hope you all have understood today's whatever from paragraph 6 to 9 I have taught. Okay, if there is any confusion you can put it down in the video in the comment section. Okay, I'll answer your questions. And children, one more thing, you only have to write whatever is given in the PDF in your fair copy. Okay, don't keep on asking that miss we have to write this, miss we have to write that. You only have to write whatever is given in the PDF form. Okay, and it is provided mostly on Saturdays. Even if it is provided on other days, then you have to write it only whatever is there in the PDF form. You do not have to write anything else. Okay, only the PDFs you have to copy in your fair copy in English. Okay, so do not keep asking this that miss we have to write this, miss we have to write that. You will be given the PDF and you have to write only that much. Okay, chalo children, take care and have a good day, study well.